All right, G. So in the last lecture, we looked into what? We looked into the price effect. Okay. Do we remember the price effect? We said that the price effect consisted of two further effects. One was the substitution effect. I think we were able to complete it in due detail at that time. A substitution effect, we did write its definition in the previous class. So just to recall, price effect, the total price effect is what? It is the change in quantity demanded whenever price changes. Remember the law of demand from AS? It is the same thing. Okay, if the price falls, the quantity demanded rises. But the question is why? Why does this happen? Or in other words, when price rises, the quantity demanded falls. The question was कि ऐसा क्यों हो रहा है? What is the reason behind this? So we came to know that the price effect further is constituted of the income effect and the substitution effect. Income effect and the substitution effect. Now, what is the substitution effect? मतलब जब भी प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी इंक्रीज होगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और बाकी इंक्रीज होगी इनकम इफेक्ट की वजह से. Similarly, when the price rises, the quantity demanded falls. Some of it falls due to substitution effect, some of it falls due to income effect, and combined these two, it is called the price effect. So ये हमने लास्ट क्लास में सारा देख लिया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट plus income effect gives you the price effect. Substitution effect हमने ड्यू डिटेल में देख लिया था. Just to recall, substitution effect क्या है? देखें, when the price of a product rises, it appears to be expensive than as compared to its substitutes. तो आप क्या करते हैं? आप इसको कम लेते हैं और उसकी जगह उसके substitutes को ज्यादा ले लेते हैं. It works the other way around as well. If the price of a product falls, it appears to be relatively cheaper than all its other substitutes. ठीक है, मतलब अगर मैकडॉनल्ड्स की प्राइस अभी 1400 1500 से गिर के 500 हो जाती है तो आप जहां 10 दफा मैकडॉनल्ड्स जाते थे, 10 दफा टोटल बाहर जाते थे, जिसमें से आप 5 दफा केएफसी जाते थे, 5 दफा मैकडॉनल्ड्स जाते थे. ठीक है, तो नाउ बिकॉज मैकडॉनल्ड्स इज नाउ चीपर, सो you increase the consumption of McDonald's. Now, how do you do that? By reducing the consumption of KFC. So this is called the substitution effect कि आपने इसको कम करके इसको increase कर लिया. Do we get it? तो ये था substitution effect. Now I don't think so कि हमने income effect पूरा लिखा था, right? Is that right? Or are we done with that? यार लिखा ही नहीं था. Income effect लिखा ही नहीं था, substitution effect लिखा था. यार सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लिखा था. All right, all right. So income effect क्या चीज है? Income effect ये है कि when the price of a product falls, for example, the consumers real income increases. This extra income can be spent on the product if it is a normal good. Remember from AS कि इनकम बढ़ती है तो सिर्फ नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है. सो दिस इज द इनकम इफेक्ट. ठीक है, वाइस वर्सा इफ प्राइस राइजेस, उस केस में आपकी रियल इनकम कम हो जाती है. अब इसको जरा समझें. रियल इनकम का आई एम श्योर के काफी लोग भूल जाते हैं उसका क्या नाम है, कि क्या सीन था, क्या था. लेट मी रिकॉल. आप रोज यू टेक to your school $10 as your pocket money, so your income is $10. This is your nominal income, and every day you buy only two things, a toffee and a gum. This is your daily routine. The toffee is for $1 and
The gum is for $2. Every day you go to your school canteen and you buy 6 toffees, and with the money left, $6 लग गए, कितने बच गए? 4. With the money left, you are able to buy 2 gums. This is your daily routine since whatever. Okay. Now what happens is, again you wake up one fine day and your mother gives you $10. That what does that mean? कि अभी भी आपकी nominal income change नहीं हुई. You go to the school. What happens is, okay, this $2 is now slashed to $1. Okay. You, like every day, you bought 6 toffees, $6 gone, and you bought 2 chewing gums and $2 gone, and still you are left with what? Still you are left with $2. What is this? This is your increase in real income. Now, अब आप पहले से ज्यादा अमीर हैं, ठीक है? इंक्रीज इन रियल इनकम, आप पहले से ज्यादा अमीर हो गए हम. डू वी गेट दिस? ये बात समझ आ गई सबको? चलें जी, आगे आते हैं. तो ये एक्स्ट्रा पैसे अब आप उस पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ इफेक्ट दिखा दें, लिखा नहीं था पूरा. ओ हियर यू गो. अच्छा, ये जो एक डेफिनेशन लिखी थी, यस सर. ये दिस इज द इनकम इफेक्ट. अच्छा भाई, नाउ दिस इज, ज्यादातर टीचर्स जो है ना इसको ऊपर ऊपर से भगा देते हैं, ठीक है? कहते हैं रट्टा लगा लो ग्राफ का, और ग्राफ के थ्रू ही इसको समझना. जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस दीज थिंग्स. इसका रट्टा नहीं लग सकता, ठीक है? आई बात समझ में? तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये आपके A2 का पहला धचका है आपको, ठीक है? I want you to drop all your pens. If I would have been taking the session face to face, so I would have told everyone to drop their pens. So please drop your pens. मेरे साथ कोई भी नहीं बनाएगा. मैं एक दफा बनाऊंगा, I will erase it, then I'll make it another time, then I'll erase it. फिर मैं इसको 3 दफा बनाऊंगा और मिटाऊंगा. चौथी दफा आपने मेरे साथ इसको बनाना है, ठीक है? Is this understood? So make sure that everyone, no one is writing it down. वैसे हम इसको केस कहते हैं. मैंने ये केस बनाए हुए हैं, 6 केसेस हैं जो कि हमें समझने हैं. प्राइस इफेक्ट, अभी हेडिंग दे दें बेशक और नए पेज पे चले जाएं. प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, and substitution effect in case of a normal good when price falls. Price effect, income effect, and substitution effect in case of a normal good when price falls. All right, everyone. I just want you to look at it and don't make it, please. ठीक है? लिख लिया सबने हेडिंग? अब आप पेन नीचे रख दें और मैं तो कहता हूं रजिस्टर बंद कर दें. 2 मिनट के लिए रजिस्टर्स बंद कर दें, रिलैक्स करें, चिल करें. आज वैसे ही फेस टू फेस नहीं है क्लास. चलें जी, सिर्फ देखें. एवरीवन मेक श्योर, please do me a favor and don't make it with me. Just look at it. ये 2-3 दफा मैं बनाऊंगा, मिटाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी. So here we have quantity of good B, and here we have quantity of good A, and this is our initial budget line PQ. Let's call it PQ. What quantity of good A and good B will the consumer buy? Anyone? कौन सी quantity लेगा? Anyone? What quantity of good A and good B will the consumer buy? The one that gives maximum utility. And where is that? Towards the middle of the graph. मतलब middle पे कोई भी ले लो. हाँ जी. नहीं, come on.
इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कहां पे होती है भाई? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कहां पे होती है? बहुत नालायक लोग हैं भाई आप लोग। जहां पे, यस, अच्छा मैसेजेस ना करें ना भाई, आप लिखें। It's better to write. Yes, point of intersection nahi Maheen. There is a difference. These are 2 points of intersections. The budget line does not cut, Tangent. IC does not cut the budget line. It makes a Tangent. tangent with the IC. Make sure you're not making it. तो ये आ गया हमारा initial equilibrium. Let's call it X. We are currently consuming B1 of good B, and we are currently consuming A1 of good A. Now what happens is the price of good A falls. Can you tell me what happens when the price of good A falls? Anyone? The budget line shifts in a pivotal manner outwards. ठीक है, लेट्स कॉल दिस लाइन PR. अब हम क्या करेंगे? Our consumer moves to a higher level of satisfaction. ठीक है, IC2, this is the equilibrium, and this is the total increase in the consumption of good A. Now, काश इतना सिंपल होता. This is what? This is the total. ये जो A1 से A2 आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, this is the total increase in the price effect. It is the total increase in the demand which is called the price effect. पूरी price change हुई तो overall demand आपकी इतनी से बढ़ गई. But we have to show the income and the substitution effects separately. We know that within this substitution, within this price effect, there is the substitution effect and the income effect. इन दोनों को add करते हैं. अब ये total price effect था, ठीक है. अगर हम यहां पे एक IC बना देता मैं आगे, ये टोटल प्राइस इफेक्ट था. लेकिन एग्जामिनर कह रहे कि नहीं, मुझे इधर पूरा क्या नजर आना चाहिए, इसके दरमियान कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट अलग अलग नजर आना चाहिए. अब उसके लिए क्या कर रहा हूं? उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग एन इमेजिनरी बजट लाइन. मैं ये जो नई बजट लाइन है, मुझे बताएं नई प्राइसेस को कौन सी बजट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, PQ या PR आफ्टर द प्राइस चेंज? नई बजट लाइन को क्या चीज रिप्रेजेंट कर, नई प्राइसेस को? PR. अब मैं PR को पीछे लाता रहूंगा और तब तक पीछे लाता रहूंगा जब तक ये क्या नहीं करती, इसके साथ टेंजेंट नहीं बनाती. ठीक है, इसके साथ टेंजेंट नहीं बनाती, पुराने लेवल ऑफ पुराने IC के साथ. नाउ व्हाट इज दिस? इस बात को जरा समझें. व्हाट इज दिस? व्हाट हैज हैपेंड? द बजट लाइन को क्या हुआ, PQ से PR चलेगी. ऑब्वियसली नाउ वी कैन बाय मोर ऑफ गुड A एंड गुड B. हम उसको एक इमेजिनरी तौर पे जबरदस्ती उसको पीछे ले आए और तब तक लेते आए दीज टू लाइन शुड बी पैरेलल. ये एक इमेजिनरी बजट लाइन है, लेट्स कॉल इट MN, और हम इसको तब तक पीछे लेके आते रहे जब तक ये पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर वापस नहीं चला गया. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रीस्टोर्ड द कंज्यूमर एट हिज प्रीवियस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. उसको हम उसके पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर वापस ले गए. हमने ये क्यों किया है? ताकि हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग-अलग दिखा सकें. बात को समझें. लेट्स सपोज वो जो बच्चा है उसको हमने वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपए उसके बच रहे थे, जो हम भी हमारी एग्जांपल में च्युइंगम और वो ले रहा था टॉफी, उसके जो एक्स्ट्रा 2 रुपए बच रहे थे वो हमने उसको दिए नहीं, लेकिन उसको बता दिया है कि अब गुड A सस्ता है और गुड B रिलेटिवली महंगा है. Now he does not have that extra money, but what he has is he has the knowledge कि good A अब is cheaper than good B. So what will he do? He will, staying at the same level of satisfaction. How was he able to move to a higher level of satisfaction? ठीक है, क्यों जाएगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है. अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने उसकी इनकम कांस्टेंट रखी हुई है.
उसकी इनकम अभी इंक्रीज नहीं हुई, इनकम उसकी अभी उतनी की उतनी है, तो व्हाट विल हैपन, हमने उसको उसके पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रिस्टोर कर दिया। ये जहां नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, लेट्स कॉल इट वाई, इसको हम वापस ले गए यहां A1 से A2। ये जो इंक्रीज आया है कंजम्पशन में ऑफ गुड ए, ये क्यों आया है, किस तरह आया? अब पैसे तो हम कह रहे हैं हमने उसको दिए नहीं, ही कैन नॉट स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी। ये कैसे आया है? बाय सब्सटीट्यूटिंग गुड ए इन प्लेस ऑफ गुड बी। उसने गुड बी की कंजम्पशन कम कर दी, स्टेइंग एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वो बेसिकली यहां से यहां आ गया। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो इंक्रीज आया है इनकम में, कंजम्पशन में ऑफ गुड ए, ये कैसे आया है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नाउ ये बात समझ आई हमने किया क्या है? हमने उसको कंज्यूमर को वापस रिस्टोर किया है उसके प्रीवियस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे, ताकि हम इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अलग अलग दिखा सकें। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? हाउ वाज ही एबल टू बाय मोर ऑफ गुड ए and increase the consumption of good A from A1 to A2 by reducing the consumption of good B from B1 to B2. Now at the same time हमें पता है कि इस प्रोडक्ट के सस्ते होने की वजह से उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, और रियल इनकम क्या होती है? जब रियल इनकम इंक्रीज होती है, किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है? नॉर्मल गुड। तो अज्यूमिंग गुड ए इज अ नॉर्मल गुड, व्हाट विल द कंज्यूमर डू? वो जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं वो इस गुड पे लगाएगा। तो अब हमने फाइनल आईसी के ऊपर जाना है, लेकिन मेक श्योर कि हम क्या करें, A3 जो भी आएगा हमारा फाइनल, वो A2 से आगे हो। जो A3 आएगा वो A2 से आगे आगे हो। ये क्या है? ये जो इनकम कंजम्पशन बढ़ी है, ये इनकम की वजह से बढ़ी है, एक्स्ट्रा इनकम दैट ही इज लेफ्ट विद। और ये टोटल जो है A1 से A3 इज द टोटल प्राइस इफेक्ट। हाँ जी, आई एक्सपेक्ट वेरी फ्यू ऑफ यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्योंकि आई नो दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट टू ग्रास्प एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनीवन हु हैज 100% ग्रिप ऑन दिस, जिसको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया कि चक्कर क्या चला? सर मेरा सवाल है। जी जी पूछें। सर तो मतलब बेसिकली जो मुझे समझ आई कि हम पीआर के थ्रू, जो हमने बजट लाइन बनाई है उसके थ्रू इनकम इफेक्ट दिखा रहे हैं, और यस, एमएन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहे हैं। बिल्कुल 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 बात ऐसी, बिल्कुल बात ऐसी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं। ठीक है, क्योंकि पिवटल चेंज और वो पैरेलल शिफ्ट जो है वो इनकम का आता है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, डोंट वरी, दोबारा बनेगा ये। तब तक ये 3 दफा बनेगा, बनाया नहीं ना अभी किसी ने। ये मैसेज करने से बेहतर है आप लोग। अच्छा, अली आजम समझ आ गया, गुड। चलें जी, दोबारा आ जाए। क्वांटिटी ऑफ गुड ए, सॉरी गुड बी इधर आ गया। अब मेरे साथ 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 सिर्फ सिर्फ समझें गौर से, क्वांटिटी ऑफ गुड ए आ गया। एनीवन हु डज नॉट नो व्हाट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स आर, तो मेरे से भी पूछ ले, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आते तो फिर आप ऑब्वियसली ये भी आपको समझ एज सच नहीं आएगा। So this is our initial budget line, which is PQ. What quantity will the consumer buy? The consumer will buy this quantity IC1 at X. Okay. The consumer is buying this much of good B and this much of good A. All right. Now what happens is price of good A falls. Good A अब सस्ता हो गया, obviously ये हमें पता है budget line को क्या होगा, तब there will be a pivotal shift outwards. There will be a pivotal shift outwards. ये PQ से PR। अब चक्कर क्या है? अगर मैंने इस पे फाइनल इंडिफरेंस कर्व बना दिया ये, ठीक है, और मैंने ये टोटल क्वांटिटी आ गई, तो ये जो है ये टोटल क्या है? प्राइस इफेक्ट। अब हमें पता है इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कुछ इनकम इफेक्ट है।
नाउ द एग्जामिनर आस्क्स कि ये मुझे अलग अलग दिखाएं। अब उसको ये अलग अलग कैसे दिखाएं भाई? एनीवन? हाउ कैन वी डू दैट? दिस इज द टाइम वे वी ड्रॉ द इमेजिनरी बजट लाइन। देखिए बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि हम जबरदस्ती अपने इसको पीछे लाना शुरू कर रहे हैं। सर आप म्यूटेड। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था म्यूटेड थे आप, ठीक है। नहीं नहीं, बाकी लोग, मैं म्यूटेड था अभी तक? नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, वो आपके आपके उस पर कोई इशू आ रहा है। ओके मैं तो बातें चल रही। हाँ जी, वो तुम्हारे उसमें तुमने भी लेट ज्वाइन किया ना, लेट, इस वजह से भी हो रहा है। अच्छा जी, ये देखें, अब इस बात को समझें। यार ये स्केल को क्या मसला हो गया है? एक सेकेंड, स्केल को रिमूव ही कर देते हैं। किधर गया है भाई? मुसीबत ही पड़ गई स्केल की, फजूल है स्केल। अच्छा जी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। इज द स्क्रीन स्टिल बीइंग शेयर्ड, राइट? यस सर। ऑल राइट। एक सेकेंड, वेयर इज माय वीडियो गॉन? सर ऑन है। अच्छा, मुझे नहीं शो हो रही थी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट जी, सॉरी, माय बैड। हाँ जी, तो अब ये जो है, ये क्या आ गया? फाइनल इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहे हैं हमें ये दोनों अलग अलग दिखाओ, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी ड्रॉ द इमेजिनरी बजट लाइन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इसको पीछे ला रहे हैं, और तब तक पीछे लाते रहेंगे जब तक ये पुराने इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट नहीं बनाता। ठीक है, लेट्स सपोज समवेयर हियर। ये जो इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये देखें, दिस इंक्रीज फ्रॉम A1 to A2 is basically the substitution effect, where people have know that their good A is now cheaper, so they have acted upon it and they have reduced relatively good B जो उनको महंगा लग रहा है, they have reduced its consumption and have increased the consumption of good A in place of that. Now at the same time उस बंदे की रियल इनकम भी तो बढ़ गई, जो हमने अभी बात की थी, 2 रुपीज वाली। तो वो पैसे भी वो उस पे लगाएगा, assuming what? That good A is a normal good. आगे जाके हम देखेंगे ये this might change, different types of goods भी देखेंगे। So anywhere ahead of, ये देखें इस पॉइंट से आगे आगे, क्योंकि A3 शुड बी A2 से आगे, तो कहीं भी इससे आगे आप बना सकते हैं अपना आईसी का इक्विलिब्रियम। A3, ये जो A2 से A3 आया है, दिस इज द इनकम इफेक्ट, और ये पूरा जो टोटल आया है, दिस इज द प्राइस इफेक्ट। अच्छा, नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट अबाउट गुड बी। गुड बी के बारे में वी विल बी साइलेंट कि गुड बी नॉर्मल है, इंफीरियर है, क्या है। तो गुड बी के बारे में हम कंसर्न ही नहीं है, हमने सिर्फ गुड ए को देखना है। ऑल राइट, इज दिस डन? हाँ जी, अब बताएं कितने लोगों को समझ आ गया और किसको समझ नहीं आया? एनीवन हु डिड नॉट गेट दिस? सर एक और दफा करेंगे तो। एक और दफा, इसीलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। लें जी, दोबारा गौर से। दरअसल आज फेस टू फेस क्लास नहीं है ना, तो इसलिए जिन लोगों को फेस टू फेस की आदत है उनको फिर जरा टाइम लगता है, ऑनलाइन की आदत नहीं है जिनको। क्वांटिटी ऑफ गुड बी, एंड here we have quantity of good A. Now what happens is, this is our initial budget line,
ठीक है, लेट्स कॉल इट बजट लाइन PQ। ये हमारा इक्विलिब्रियम IC आ गया। This is IC1. Let's call this point X and this one B1. It's the same thing जो ऊपर दो ग्राफ्स बने exactly वही है तीसरी दफा। Now what happens is the price of good A falls. यहां तक हम सबको पता है कि whenever the price of good A falls, the budget line shifts in a pivotal manner. और ये शिफ्ट कर गया from PQ to PR। ठीक है, अब बजाय इसके कि हम फाइनल आईसी अपना बना दें और बोलें कि ये टोटल प्राइस इफेक्ट है, एग्जामिनर हमें कहता है कि इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग-अलग दिखाओ। हाउ कैन वी डू दैट? हम उसके लिए एक इमेजिनरी बजट लाइन बनाते हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये लाइन इज शुड बी पैरेलल टू द न्यू बजट लाइन PR व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द न्यू प्राइसेस बट शुड मेक अ टेंजेंट विद द ओल्ड आईसी। By doing so, what have we done is that we have restored the consumer at his previous level of satisfaction. However, there is one change. This time, he knows that the prices of good A have decreased. So the price of good A has decreased. उसको ये पता है तो वो क्या करेगा? He will act upon it. और वो good A की consumption बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा जब extra income नहीं है? वो good B की consumption कम करके बढ़ाएगा। ठीक है, अभी हम assume कर रहे हैं extra income नहीं है। तो you will drag this line below और तब तक आप इसको लेके आते रहेंगे जब तक ये क्या नहीं बनाती, पुराने आईसी के साथ टेंजेंट नहीं बना लेती। Here we go। ठीक है, लेट्स कॉल दिस लाइन MN। ये एक इमेजिनरी बजट लाइन है which is parallel to the new budget line and tangent to the old indifference curve। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्विलिब्रियम Y। अब ये Y क्या बता रहा है कि उसने उसी देखें इंडिफरेंस कर्व पे क्या किया है, इसकी कंजम्पशन बढ़ा दी है, इसकी कंजम्पशन गिरा दी। और वो कैसे बढ़ा पाया इसकी कंजम्पशन? क्योंकि उसने गुड Y1 से Y2 ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये कैसे आया? बिकॉज द कंज्यूमर हैज सब्स्टिट्यूटेड गुड A इन प्लेस ऑफ गुड B। डू वी गेट इट? अब फाइनल इक्विलिब्रियम बस ख्याल रखना है कि आपने इससे आगे आगे बनाना है क्योंकि A3 क्योंकि ये नॉर्मल गुड है। कौन सा गुड है? नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो आपने कहीं पे भी इससे आगे IC2 बना देना है थोड़ा सा नीचे करके और ये आ गया A2 से A3 इज आर इनकम इफेक्ट। थोड़ी सी इनकम, थोड़ी सी डिमांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से बढ़ी, थोड़ी सी डिमांड इनकम इफेक्ट की वजह से बढ़ी, कंबाइन देम एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। बेसिकली ये चीज वही है क्या कि एक गुड सस्ता हुआ तो आप सीधा इधर चले गए, लेकिन इसके दरमियान वो आपसे पूछ रहा है क्या इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग अलग है। तो उसके लिए हम ये इमेजिनरी बजट लाइन बनाते हैं ये, तो ये आपको बता देती है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और ये इनकम इफेक्ट। बात समझ आई? और लॉजिक समझ आई हमने क्यों किया? ताकि हम अलग अलग सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दिखा सकें। डू वी तो अंडरस्टैंड सर दिस? जी जी। सर जो हम पुराने आईसीज जो बना रहे थे हम्म। उनमें हमारे सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व बनता था, हाँ तो हाँ उसमें वो प्राइस इफेक्ट हम दिखा रहे हैं, पूरा वो हाँ प्राइस हाँ, वो इफेक्ट हम है। पूरा प्राइस इफेक्ट दिखा रहे हैं विदाउट नोइंग। अब हम पूरा अच्छा प्राइस इफेक्ट अच्छा, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब इफेक्ट। ये सॉर्ट ऑफ जो बैकग्राउंड में हो रहा है ये हम देख रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप सही। कह सकते हैं। ठीक हो गया। आइन जी, अब जरा इसकी थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जो A1 टू A2 है या फिर X टू Y है, ये क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। A2 से A3 या Y टू Z जो है दैट इज द इनकम इफेक्ट। और टोटल A1 टू A3 या X टू Z total is the price effect, the total price effect. Do we get this?
तो ये है, इस तरह दिखाया जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. इज दिस अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, आ जाए जी. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज गिव दी हेडिंग. अगर नहीं दी आप लोगों ने तो अब आप दें और पेन पेंसिल निकाल लें. किसी ने बनाया तो नहीं पहले? तो पहले तो नहीं बना के बैठ गया. अब दिस इज केस 1. ठीक है, द प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये वही हेडिंग जो ऊपर दी है, दोबारा लिखना. इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड when price falls. चलें जी, one last time with me. ठीक है, this time you will make it with me. Price effect, income effect, substitution effect in case of a normal good when price falls. चलें जी. So ये आ गया हमारा एक एक्सिस. एक्स एक्सिस को थोड़ा सा कोशिश करें कि ज्यादा बड़ा बनाएं. मेरे साथ साथ बनाएंगे सारे. क्वांटिटी ऑफ good B on the y-axis and quantity of good A on the x-axis. Now this is our budget line. Okay, the initial budget line, let's call it PQ. What quantities of good A and good B will the consumer buy? Obviously he will buy where the budget line is tangent to the IC. अच्छा, people who make these sorts of ICs, जो एकदम, एक तो ये ऊपर कभी जाता नहीं है, IC हमेशा नीचे आता है. ठीक है, तो इनका मसला ये, इनका वो टेंजेंट नहीं बनेगा जो दूसरा टेंजेंट है. तो मेक श्योर कि इसको ऐसे और इधर आगे ले जाके आपने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है. अगर आपने ऐसे कर दिया तो वो आपका टेंजेंट ही नहीं बनेगा कभी भी. So at this point, this is our equilibrium X, where the consumer is consuming B1 of good B and A1 of good A. Now what happens? The price of good A falls, obviously, as the consumer can buy more of good A. The budget line shifts in a pivotal manner outwards, as we already know, from PQ to PR. Let's call this line PR. All right. Now, in order to bifurcate, in order to separately show both the price effect, the substitution and the income effect, we draw an imaginary budget line which is parallel to the new budget line PQ, but tangent to the old IC. अब हम ये कैसे कर रहे हैं? ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नई बजट लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? This new budget line actually represents the new prices. ये represent कर रही है new prices. यार ये सीधी लाइन क्यों नहीं बना रहा आज? Yes, here we go. So new prices के साथ हमने उसको at his old level of satisfaction पे restore कर दिया. Let's call it MN. और ये जो इक्विलिब्रियम है, लेट्स कॉल इट y. ये आपका फर्क नहीं आ पड़ता है, A2 Q से आगे आए पीछे आए, डजंट मैटर. This is the substitution effect. The consumer, knowing that good A is now cheaper than good B, has reduced the consumption of good B from B1 to B2 and has increased the consumption of good A from A1 to A2. This is the substitution effect. At the same time, the consumer experiences an increase in his real income. This extra income will be further spent on good A. So make sure that कहीं इस तरह ना बन जाए कहीं पीछे, जहां पे A3 A2 से पीछे आ जाए. ठीक है, so this is the A3 और ये टोटल क्या है? This is the income effect which is positive. Why? Because this is a normal good. ठीक हो गया. And this total thing A1 से A3, this is the price effect. So A1 to A2 and X to Y is your substitution effect.
which is positive. A2 to A3, yeah, Y to Z is your income effect, which is again positive. And A1 to A3 or X to Z is the price effect, which is positive. ठीक हो गया? Is this clear, everyone? Any questions? इसके ऊपर further build up होता जाएगा. Make sure if there are questions, make sure you ask them. Any confusion? सबका बन गया? Make sure आप मेरे साथ साथ बनाएं, सिर्फ screenshots लेके ना बैठ जाएं. जब तक कि आप बनाएंगे नहीं, you will not be able to reproduce it in the exam. हाँ जी. Is this clear, everyone? Is this understood? Yes. चलें, इसकी जल्दी से explanation लिख लेते हैं. Initially, the equilibrium is at X, where the budget line PQ is tangent to IC1. The consumer is consuming. The consumer is consuming A1 of good A. As the price of good A falls, the budget line shifts in a pivotal manner outwards. The budget line shifts in a pivotal manner outwards from PQ to PR. To separately show the income and substitution effects we draw an imaginary budget line क्या नाम रखा था हमने imaginary budget line का? MN. MN, which is parallel to the new budget line PR and tangent to the old IC1 at Y. The increase in consumption. सर थोड़ा जूम आउट कर दें. थोड़ा जूम आउट कर दें, फिर आपको नजर आ जाएगा क्लियरली. आर यू श्योर? जी सर. चलिए, here you go. Tangent to old IC at Y, the increase in consumption of good A
from A1 to A2 is the substitution effect. And the increase in good A from A2 to A3 is the income effect. Both of them combined is the price effect. A1 to A3. हाँ जी, इसकी ले लें स्क्रीनशॉट। और and this is the explanation for the substitution effect, income effect, and price effect. Are we sure we understand this? किसी को doubts? Hopefully kal we'll also have a face-to-face class along with the online class. So if you have any problems, you can bring it there as well. If you have people who take online, if you have problems, you can ask me on the phone or सर कल इसका रीकैप हो जाएगा ना कि कल face इसका to face? रिकैप हो जाएगा, कोई मसला नहीं। यस सर। ठीक है, चलें जी। दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, चलें जी एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।